See you guys back. Morning, ma'am. Good morning. Hello, Ashish. Good morning. Good morning, ma'am. You don't recognize me? Yes, ma'am. So should we start the class? Ma'am, और भी join करना है किसी ने? Others will join, ma'am. So we can wait another 2 minutes. You can talk till that time because we have given the time of 10:40. Oh, 11:40, right, no. sorry. So, and Swaran, Shahid, Sagar, open your videos. So Gulshan, Meenal, Gulshan. Durganand, Sanjay. Everyone open your video. It's compulsory to open your video. So how you all? How your studies going on? How your online classes going on? Kanai, open your video. So ma'am is asking how's the studies going on. Good, ma'am. No one is replying right now. बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई हमारी. Very good, Priyanka. And do you find it difficult online or it's more easy? Ma'am, sometimes it's difficult because network connectivity sometimes But is not good. easy, So because yeah, ma'am is not looking at you what you guys are doing, so it becomes convenient for you. Right? yes, ma'am. So, Ashish, what are you doing? But yeah, it's good. Yes, ma'am. What are you doing these days? Nothing, ma'am. Nothing. कुछ तो कर रहे हो क्या? Nothing. Yes, ma'am. He's just playing Free Fire and wasting his time. No, ma'am. No Then worries. what you are doing? Tell me what you are doing then. There are 24 hours, you can sleep for 8 hours. What 16 hours, what are you doing? You are working somewhere, helping your parents or anything, whatever you are doing. What you are Yes, doing? ma'am. What yes? And Lakshman and Rohit, what's up with you? Yes, Lakshman. Yes, ma'am. What is up with you? What are you doing these days? So you got congratulations, Ashish. Lakshman got admission to college. Thank you, ma'am. And Bharat is not there. Bharat is not Sanjay, here. where is Bharat? It's Bharat. Bharat no, is not. Feroz is not here. Where is Feroz? Feroz had texted me also. Huh? Sanjay, you have taken class with me earlier. Recognize his face. Yes, Sanjay and 12th, when they were in 11th, they have taken the class now. Yes, with 12th. Sanjay I can recognize. Priyanka I can recognize. Rohit, yes, the another Rohit also I can recognize. A lot of new faces. So let them join and then we can start. Or you want me to start? I think it's already 11:40. Yeah. Start now. Yes, we can start. Raju, open your video. Sonakshi, open your video and mute everyone. Mute yourself. Please mute yourself. Right? You can just unmute when I really want you to talk. And I'll ask everyone. So how many kids are there? How many total? Right now we are having 31 participants, so I can reduce you and me 29 participants plus around we are having 45. So okay. Should I count? 1, 2, 3, 4, Then 5, limited. Then one-to-one interaction is not possible. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, See, be very attentive in my class. You know, I can tell anyone to unmute and reply back. People I can see on the screen right now. I can't see the whole screen. Maybe the second part. Yeah, here you are. Okay, Pooja is here. Rashida. Around 40. Raju, where is Jyoti and Aarti? Ask them to sit with you. Good morning, good morning. Second lot I can see. Jyoti, ask Raju, ask Jyoti and Aarti to come. Okay. Sonakshi, open your video. Good morning, Sachin. So a very good morning to you all. My name is Kajal Dolani. I think few of the students, I'm very new to them and few are my old students. Right? I'll be taking your communication class today. Right? आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है मैम.
आ रही है आवाज आ रही है? Yes, yes, I am able to hear you, and others are also able. So Okay. there must be some network issue at your end. There is a rule in the class. If you are not able to hear, just write down in the chat box that you are not able to hear. So don't interrupt in between, please. You can write Okay. down in the chat box. So I want my old students, Rohit, Lakshman, Ashish, to please unmute yourself. I want you three of you to speak up here with me because you have been taking classes with me. So I want you to be an interactive participant, not a silent participant here. Rohit, Lakshman, Ashish, any other old students? I can't see everyone. और कोई पुराने students हैं इसमें? Lakshman, open your video. Why you have switched off your video? Open your video. I'm not able to see Bharat right now, nor I'm able to see Firoz. Firoz was. I want all the students, the old students, to be a little interactive with me and unmute it. Vasu, why you are not able to unmute? Rohit, Lakshman, please unmute. So I can start. Because I want What you happened? to start and give a little intro to the new students because you are seniors here. You can write down, na? I'm not able to hear you, what you are saying. Lakshman, unmute karo. There is some network issue at their end right now, ma'am. Okay, so they can't hear me. So everyone can hear me, then let me start with, and I'll start. You can hear me, everyone? Yes, ma'am. Okay. So Okay, I think show me a thumbs up if you can hear me. Good, Priyanka. Good gesture. So we'll talk about the gestures also today here. See, Priyanka communicated without using her words. So again, this is the communication what she did to me, right? Yes, Priyanka, you remember some things. Okay. So let's start. What is the communication? See, communication is not only talking or speaking out. दो लोगों के बीच में सिर्फ बात नहीं होती है. Understand? I want the ma'am, the senior people. Ashish, are you unmute? yes, Ashish, he is. Yes, Ashish, please speak up. You tell me what is communication. Another one line, two liners. Fatafat. Jaldi se. Yes, Ashish. Ma'am, one people told him, and they can understand their feelings. Yes, very good. So that is communication. Okay. See, communication is not only what we speak, right? Yes, ma'am. जो हम बात करते हैं, what we speak is not only the communication. Listening, सुनना, body language. So communication consists of three things: your speaking skills, your listening skills, and your body language. Right? So जो आप बात करते हो, आप कैसे बात करते हो किसी से, आपकी body language कैसी होती है, this all adds up to your communication. ठीक है? You must have seen sometimes, आपने देखा होगा कि आप किसी friend से बात करते हो, तो उस friend आपकी बात बहुत ध्यान से नहीं सुन रहा होता है, right? So can you make it out that he is not interested in your conversation? Yes or no? At least give me a something, right? Yes. So that means that he is not interested in the communication. वहाँ पे communication हमारा one way हो जाता है. It becomes a one way communication. So to be a good communication, you have to be a good listener. You have to show positive body language. You have to speak good words with clarity. Yes, ma'am. Yes, Lakshman. Lakshman, can you unmute yourself? Yes, Lakshman, speak up. Just explain communication to your friends. Ma'am, actually there is a network issue, so I can hear you. I can hear you, Lakshman. properly. No problem. Your voice is very clear. It's gone. Okay. So You can switch off your video, Lakshman, and you can speak. We can hear you. So if you can want to take down some notes or you want to write something for communication, just write in simple words. Communication consists of speaking skills, your body language, and your listening skills. Just note down these 3 points. Please note it down. It will be very important for you. Okay. Otherwise, you will forget everything. So Vasu is writing communication is the way of sharing our thoughts, feelings, and sharing our ideas. Very good. So what do you do when you communicate?
you share your feelings, you share your thoughts. आप क्या सोचते हो, आप कैसा feel करते हो? Don't you share all these with your friends or with your ठीक relatives? है आवाज आ रही है. Sorry. Yes, Rohit. Can you come up, Rohit? Vasu, are you able to hear right now? I don't know what he's Anyone would doing. like to speak? Any new student would like to speak on communication? कोई बात करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? Bharat is also there. Bharat, you want to talk? Unmute yourself and talk. Unmute the है उसका. So ठीक है. So okay, let's start. Why is communication necessary? Why is communication important? Communication is a very important aspect of your personality. When you speak to someone, right? When you speak to someone, what is that impresses the other person? Is how you present yourself, how you talk to them, what is your body language, is it positive, is it negative, are you interested? So you can make out everything from your body language. So should I repeat in Hindi also, ma'am? Yes, little bit, because they won't be able to understand them. कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपके जो वर्ड्स होते हैं सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, उन वर्ड्स को आप कैसे बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सब एक आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनाता है. आप आए, आपने बोला गुड मॉर्निंग मैम, बट आपके फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं हैं. इफ यू डोंट हैव एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस, आई कैन क्लियरली मेक इट आउट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट लाइकिंग मी. You don't want to say good morning, but you are saying good morning. Am I right? ऐसा होता है, सबके साथ होता है. Yes or no? Yes, Priyanka. Priyanka, you want to speak up something? Yes, Priyanka, you can speak. मैम एंड ये भी होता है ना कि what you want to say and others can understanding your what you want to say. So that becomes that you have to be clear. आपको clear words, short और clear words में बात करनी है. ठीक है, जब आप किसी से बात करते हो तो आपको क्लैरिटी देनी चाहिए इसको. I'll share you a small video after this so you can make it out कि communication, आपकी क्लैरिटी, वर्ड्स की क्लैरिटी, हाउ यू से इट, आप कैसे बात करते हो, कितना इंपॉर्टेंट है. जब आप क्लास में टीचर के साथ भी जब इंटरेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ लाइव एग्जाम्पल, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे टीचर को पता लग जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, आपको इंटरेस्ट नहीं है, कैसे पता लगता है? आपको कुछ बोल नहीं रहे ना उनको, कैसे पता लगा उनको? हाउ शी केम टू नो दैट यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज? विथ योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड सो मेनी थिंग्स. योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स एवरीथिंग. आपकी बॉडी लैंग्वेज में यार नीचे करके सर बैठे हो, ऐसे बैठे हो, so these are all कि you are not interested in the subject. Am I right? जो other time होता है क्लास में, right? Yes. So true. So true. So yes, Rohit, can you speak up? Rohit है? हाँ, Vasu? Vasu, are you able to hear? Okay. That's There is some issue so at communication basically is your listening skills, your talking skills, speaking skills, and your body language. So body language जो होता है वो हमारा non-verbal communication होता है. So verbal means हम जो बात करते हैं, what we say is our verbal. Non-verbal would be our body language. Body language में क्या क्या हो सकता है? Your facial expressions, your eye contact, your body language, your hands, where the hands are going, where you are sitting. See, Rohit, you are yawning. I can make it out. You are not interested. See, this is again a body language. See, you can see. So without talking, I can make it out from everyone's face who is interested here and who is not. So this is the body language. This is sort of a communication. Here you all are listeners. आप यहाँ पे सब listeners हो, right? So to be a good communicator, आपको एक listener होना बहुत जरूरी है. अच्छा, ठीक है? Any old student, please come up. Lakshman. So Lakshman is writing again. Lakshman, you can speak. I think you just switch off your video and you can speak. We will be able to hear you. Why you are just writing?
We want Okay, ma'am. So, uh, all you are able to hear me? yes. Yes, yes. To hear me, ma'am? Yes, हाँ, yes, I हाँ. can hear you. So, ma'am, I'm talking about that communication is a way which we can share our thoughts, feelings, ideas through talking, through body language, through expression, through emotion, and etc. Okay, very good. Very good. So I'll share you with you PPT slide so we can go slide by slide and see how the communication actually works. So what we can do is, can you see everyone? Can you see my screen now? yes, we can see, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So what is communication? Yes, ma'am. What is We the are able process to. of? So these things we can take up as much as we can today. What is communication? What is process of communication? Types, levels. Main is what is communication barriers? What do you mean by communication barriers? Can anyone tell me? Ashish, barriers क्या होते हैं? Yes, ma'am. What are communication barriers? Anyone, any student who can let me know कि barriers क्या होते हैं? What do you mean by barriers? Can I? हमारे उसमें जो हमारे में रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन करने में. हाँ, ma'am, Aarti is trying to speak. Okay, yes, Yes, ma'am. रुकावट yes. जो भी हमें रोकता है कम्युनिकेट करने से. और क्या क्या हो सकता है जो हमें रोकता है कम्युनिकेट करने से? Ma'am, nervousness. Yes, ma'am. Nervousness means Nervousness हमें lack of confidence. मैम Very good. Low confidence. Yes, मैम कभी कभी हम वर्ड्स भूल जाते हैं कम्युनिकेट करते वक्त. very good. More people, That's please important. join and please communicate 1-2 words. What could be the barriers? आप लोग को क्या चीज होती है जो आपको अच्छा कम्युनिकेशन करने में रोकती है? आप लोग बताओ. Because if I make this class as one side, अगर मैं बोलती रहूंगी and you will not reply, आपके लिए boring हो जाएगी क्लास बहुत. Right? So what is that आपको communicate करने में रोकता है? डर लगता है? Yes, fear of the front person. ये गर्दन नहीं हिलाओ, रोहन, रोशनी, आप लोग अनम्यूट करके बोलो. Then only Whoever wants can speak up one by one because I can't see so many people on my screen, right? So I can hear you. unmute yourself and speak. Yes, Pooja, can you speak? I can see Pooja. Yes, ma'am. Nervousness or fear. Yeah, very good. And what else? Language. Communicating in language. हिंदी में you are more comfortable, right? आप हिंदी में बात करने में ज्यादा comfortable होते हो because वो हमारी mother tongue है. Am I right? Yes, ma'am. So language can be also a barrier. Let's see how we do it. Can somebody read it? Ma'am, Anyone can do read it, it, can we do slideshow? Okay, I'll do that, ma'am. Mute yourself, those who are having background noises. Can you clear it? Can you see it Yes, yes, now we can see. now? Can anyone read this? Or should I read it out? Can I read? Yeah, please carry on. Please read whoever is saying. Idea, feelings, Can you a little louder? thought, What is communication? It is a process. Mute yourself, Sachna. Hello. आवाज नहीं आएगी वरना किसी से. हाँ, संजय. So, what is communication? It is a process of exchanging thoughts, ideas, feelings, emotion, and information through speech, signals, behavior, and writing. Yes. Is everything clear what I explained you earlier? So Yes, आप इसमें क्या अपने thoughts जो आप सोचते हो, अपने ideas, अपनी feelings, emotions करते हो, रो के किसी से बात करते हो, गुस्से में बात करते हो, ये क्या है? आपके emotions express करते हो, कुछ information, और ये सब आप कैसे बोलते हो किसी को? या तो आप बोलते हो या signals के through, ये आपका behavior बताता है, या आप लिख के बात करते हो. So it could be through speech, it could be through signals,
behavior and writing. ठीक है? So let's go for the next slide. I think this is technical. We can skip this. So what could be the type of communication? I explained you verbal and non-verbal. Verbal में क्या आ जाएगा? Can anyone tell me? मैम जो हम बोलते हैं बोल के करते हैं वर्बल मैम. Very good, Priyanka. बोल के Very करते nice. हैं, हम Yes, Sanjay. लिख के करते हैं. मैम वही मैम बोल कर जो हम अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स. Yes. Through writing, through talking, और non-verbal क्या हो सकता है? What can be non-verbal? Yes, ma'am. Ma'am, through body movement. Non-verbal can be Through your a signals. fast face expression, body movement, eye contact. Yes, very good, very good. So कई बार हम सिग्नल देते हैं ना, thumbs up करते हैं, okay, I'm fine. This is also a communication, right? हम दूर से हाथ हिलाते हैं, hello. That is also a type of a communication what we do with people. So, is it clear what is verbal and non-verbal communication? So can Yes, anyone ma'am. read quickly this? Yes, ma'am. So verbal communication could be oral. What you speak and what you write is called your verbal communication. जब एग्जाम देते हो, when you're giving your exam, isn't it a sort of a communication? You're writing on the paper. You're writing answers to the questions, right? आप answers लिखते हो अपने answer sheet में. Questions के answers लिखते हो. वो type Yes, of ma'am. communication है. आप अपनी information उस पर share कर रहे हो, जो अपना knowledge है आपको आप share कर रहे हो paper पे. That is also a communication, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Verbal communication जो होना चाहिए, it should be short and simple. ठीक है? Whatever you write, हम जब एग्जाम देते हो तो क्या बोलते हैं? Answers precise लिखो, छोटे आंसर to the point लिखो. बोला जाता है आपको? Yes, ma'am. So this is because the communication should be clear and short and simple. ठीक है? For example, अगर आप, I'm sure a lot of people know other languages like Bengali or maybe other Punjabi or any other language. If you speak to somebody in different language, ठीक है? अगर I don't know Bengali, if अब आप में से कोई बंगाली में बात करोगे, is it a simple communication है वो? नहीं, it is not simple. It becomes complex communication. Okay, one question. Communication का motive क्या होता है? What is the motive? हम communicate क्यों करते हैं? Convey the message. Yes, Sanjay, you're talking. Please speak up. Ma'am, to explain and show our feelings. Yes, आप अपनी clarity, अपने thoughts, अपनी feelings, अपनी बात उन लोगों को बोलते हो, right? So अगर ये simple नहीं होगा, clarity नहीं होगी, तो कि जो सामने वाला जिसको आप बोल रहे हो, will he be able to understand this? Will you be able to understand this? Yes or no? Yes. No. Yes, ma'am. Can somebody read this quickly? Ma'am, can I read? Yes, yes, please. Oral communication. In oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. Communication is influenced by pitch, volume, speed, and clarity of speaking. Ashish, just a second, just hold on. So communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity. What do you mean by pitch? Pitch का मतलब क्या होता है? बोलना. Pitch मतलब आप किस इंटेंसिटी से बात कर रहे हो. जब आप गुस्से में बात करते हो, आपकी पिच क्या होती है? हाई. वॉल्यूम हाई. स्पीड. I'm taking your class. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? Did you understand what I was talking? Did you understand this sentence? I'm taking your class. Can you understand what I'm talking? No, because you have to maintain a proper speed, clarity of words, pitch, volume. So just note down these things. When you speak, you have to take care of pitch,
volume, speed, and clarity. Are you taking this down? Just take down these 4 things. लिख लो ये. Just write these 4 things. Communication के लिए important क्या होता है? आपका pitch, जो आप किस tone में बात करते हो, volume everyone understands, speed, बहुत जल्दी नहीं बोलना है, बहुत slow नहीं बोलना है. बहुत जल्दी बोलोगे, सामने वाला will not understand anything, right? If you And can we do it a slideshow because उनका मोबाइल पर ना छोटा आ रहा होगा. एक मिनट. And if you talk so, अगर आप बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हो, 1 मिनट की बात को अगर आप 5 मिनट तक खींच रहे हो, so what will happen? The other person, the listener, will become bored and he will not listen to you. Okay? So whenever you are, since there are a lot of students who are going to the colleges now, so when you communicate in front of your, for interviews or for your jobs, you have to take care of your pitch, volume, speed, and clarity. Especially those students who are going out for interviews now and for jobs. Okay, next is written communication. Yes, one of you can speak, please. Those who are in 12th right now, they can at least speak about it because they are learning mass communication. Why you are not speaking? Kalyani, Swaran, Kanai. See, I'm asking you to speak because this will enhance, because just me reading and Mangal, मैं everyone. सिर्फ बोलती रहूंगी और explain करूंगी आपको. There is no fun until you come out and speak. मैम आप बता दीजिए, मेरे को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पता है. आप लोग अपने आप देखो ना कौन बात कर सकता है. शांत क्यों बैठे हो? What is the point of doing the class then if you are sitting quiet? That can read, ma. Yes, Priyanka. I want to. Yes, Priyanka, you can speak, please. Ma'am, Sajjad, you can speak. Sajjad, you can speak. Yes, Sajjad, come on. Sajjad, you have taken class from me. I know you. Come on, speak. Communication, written signs or symbols are used to communicate. In written communication, message can be transmitted, email, report, memo, etc. Written communication is most common communication way. So what is written communication? What you write, right? जो भी आप लिखते हो वो written communication होता है. वो भी verbal communication के अंदर आता है because आप verbally लिख रहे हो, कुछ intentionally लिख रहे हो उसको. Okay? Written communication is everyone clear? I think everyone knows what is written communication. इसमें letters लिखते हो, आप अपना exam जो लिख रहे हो वो भी written communication है. Report cards हैं आपके, कुछ भी होता है जो भी written form में होता है, that is called a written communication. Like newspaper. Right? Yes, ma'am. Okay, non-verbal communication. Now see these. See verbal communication तो हमारे कंट्रोल में होता है, राइट? हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा कंट्रोल नहीं होता है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जितना हम अपनी स्पीच, अपने वर्ड्स पे ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी रखना है. अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, आपकी वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, तो जो सामने वाला आपका लिसनर है, मे बी योर टीचर, योर प्रिंसिपल, योर इंटरव्यू, ही कैन मेक इट आउट कि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं. इसका मतलब है दिस व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग इज आइदर रॉन्ग और ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वर्ड्स जो आप बात करते हो फेस से और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दोनों एक साथ कोलैबोरेट होना चाहिए उनको. आप समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप बोल तो कुछ और रहे हो, लेकिन आपकी फेस एक्सप्रेशंस अलग हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो सामने जो आपका लिसनर है ना, वो मेक आउट कर जाएगा कि दिस पीपल ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है. Yes. ठीक है, बहुत क्लियर होता है लिसनर के लिए. आप कभी ट्राई करो, ट्राई विथ योर फ्रेंड समटाइम, ओके, और विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर्स एट होम टुडे. सो एवरीवन इज क्वारंटाइन, so maybe you have sisters and brothers, sit with them and आज एक ये
एक्सरसाइज करके देखो उनके साथ, आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो ऐसे जो उनके आंसर्स आपको पता हो, राइट, एंड देन यू कैन मेक इट आउट कि वो झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुंह से आपको सही बोल रहे हैं, लाइक आज तुमने टीवी देखी, तुम घूमने गए, वो यस बोलेंगे, बट आप फेस से उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लोगे कि वो झूठ बोल रहे हैं. आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज एट होम टुडे विथ एनीवन. कैसे भी करो, आपको बस ये पता लगना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है और व्हाट हिज बॉडी लैंग्वेज इज एंटायरली डिफरेंट है या सेम सिंक में है वो. Am I clear what I'm trying to say? आ रहा है सबको समझ में? Yes, ma'am. बिकॉज ये बहुत important है जब आप इंटरव्यूज और जॉब्स के लिए जाओगे या अपने कॉलेजेस में जाओगे, टीचर्स से बात करोगे, ये हर लाइफ में इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब the people who is listening you is judging you. आज जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे ये जजमेंट होता है आपका. दिस इज हाउ टू जज पीपल. ठीक है? So non-verbal communication is the common. Somebody can read it this. Ma'am, can I? Ma'am, One by one, you can take one paragraph each. Someone else was saying, Priyanka, let him try. Who was saying? मैं. रोहित. हाँ, रोशनी, बोलो. non-verbal communication is the sending or receiving of wordless messages such as gesture, body language, posture, tone of voice or facial expression is called non-verbal communication. So is this clear? Non-verbal communication is जब आप जब स्कूल आते हो या कहीं पे किसी पार्टी में जाते हो और यू गो टू सम मैरिज, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो, क्यों अच्छे से तैयार होते हो? व्हाई? अच्छा दिखने के लिए. स्कूल आप नीटली ड्रेसअप होके आओ, और आप किसी के बर्थडे पे जाते हो या किसी स्पेशल ओकेजन पे जाते हो, क्यों स्पेशल कपड़े निकालते हो? व्हाई यू टेक स्पेशल लुक स्पेशल? क्यों इतना नीट और तैयार होके जाते हो? व्हाई? ताकि सबसे अलग दिखे. और किसी को कुछ याद आ रहा है तो वो भी बोल सकता है ना करके. और सारे हमारे तरफ अट्रैक्ट हो. मुझे बताओ आप क्यों अच्छे से तैयार होके जाते हो? व्हाई डू यू वांट टू लुक गुड? रोशनी सेइंग कि सब मुझे देखे मैं मेरी तरफ अट्रैक्ट हूँ. अट्रैक्ट हो, राइट? सो आप अट्रैक्शन क्यों चाहते हो? दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज अगेन बिकॉज आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, आपसे ज्यादा से लोग बात करें, राइट? और आपका when you dress up nicely, जब अच्छे से कपड़े पहनते हो, doesn't your confidence boosts up? Yes, ma'am. Yes or no? जब आप ऐसे बैठते हो और जब अच्छे से तैयार होके कहीं जाते हो या बैठते हो, what is the difference? Don't you feel more confident? Yes, ma'am. क्यों यूनिफॉर्म क्यों बनाई हुई है आप लोगों की? Why is that uniform made? Because that uniform brings in some confidence. That yes, we are going to school and we are dressed up nicely. Again, this is not a direct communication, but it's a non-verbal communication. Okay, appearance. आप जब किसी से बात करते हो, if he is dressed up nicely, hair style बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, neat है, अच्छे से makeup है, especially for the girls, how do you feel? What Priyanka said, I'm attractive. If your appearance is good, you look attractive, people will communicate with you. People will like you. People will like to talk to you. Am I right? आप कभी चीज करके देखना कि जब आप पहले बेगबेवा बिना तैयार हुए और एक तैयार हुए नीटली, तैयार होने का मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने, अच्छे जूते पहनने, मीन्स नीट, टाइडी, प्रॉपर हेयर स्टाइल डन. समझो नीटनेस का. नीटनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव ब्रांड्स यार, कि बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन के हम अच्छे दिखते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट योर लुक्स, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. ठीक है? रूम अगेन, सराउंडिंग, साइज, लाइटिंग, डेकोरेशन, फर्निशिंग, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है.
आपको what you have to emphasize is on is your appearance. So from today onwards, I request everyone, चाहे आप घर पे ही बैठे हो, you're not going out, you're quarantined, look at yourself. Okay, I'm not telling you to buy something, buy new clothes or something, but whatever you have with you, जो भी आपके पास है अभी, उससे अपनी appearance को improve करो. Improve your appearance by making neat clothes, neat hairstyle. ठीक है? Yes, Rohit, you want to say something? Rohit? And others, those who have unmuted themselves, please mute yourself. बहुत Anyone disturb wants कर रहे हो बीच में. Anyone wants to add on something to this? किसी को कुछ बोलना है, add on करना है? और अपने वीडियोस ऑन करके बैठो सारे लोग. अपना experience. Anyone wants to share their experience going for an interview or for a job? Anyone wants to experience? और जब आप स्कूल आते हो या आपका कोई you go out for so many workshops outside your school. कोई किसी experience को कुछ अपना? नहीं बोलना. Shintu, open your video. Ashish, open your video. See, if you will share something, then you will learn also the way. Because my just talking one way will not help you out. आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है अभी. अगर थोड़ा इंटरेक्टिव होगे, अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो सबको समझ में आएगा. यू विल आल्सो फील गुड, यू विल फील कॉन्फिडेंट इफ यू टॉक हियर इन द ग्रुप. आप कहीं पर गए, आपको कहीं आपने इंटरव्यू दिया या कहीं पर भी गए, आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो आप शेयर करो ना. कहीं कोई नहीं जाता है. Lakshman, you have been doing you have been into job. Why don't you share some experience? Yes, ma'am. Last time I told to you about the Yes, I remember. I experience want you to speak here today. of one-to-one talking. Yes, I want you to share your experience here. So ma'am, मैं एक दूसरा experience. हाँ हाँ Hello, बिल्कुल ma'am. करो. Yes, yes, please. मैं एक दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. Yes, Lakshman, carry on. You are able to hear me because your voice Yes, is yes, very yes. slow. No problem. Yes, We can we are able hear to you. hear you, Lakshman. You can speak. Okay. तो जहाँ पे मैं काम पे जाता हूँ मॉर्निंग में, तो वहाँ पे मेरे को एक बात हमेशा बोली जाती है कि लक्ष्मण, यू आर a very good worker because you are in well dressed, you have a sense of dressing while working, because no one is dressed like me on the work. Hello. Yes, yes, very good. Carry on, Lakshman. We can hear तो you. जो सर हैं मेरे, तो वो कहते हैं लक्ष्मण, आप इन सब को आपसे सीखना चाहिए कि आपको आपका कॉन्फिडेंस इसलिए डेवलप है क्योंकि आप वेल ड्रेस्ड होके आते हो. that is the experience, ma'am. See these things when you bring into practical में होता है, ये चीजें बहुत बहुत मैटर करती हैं आपको आगे. जो अगर आप अच्छे से ड्रेसअप हो, नीट एंड टाइडी हो, योर पर्सनालिटी एनहांसेस, जो सामने वाला भी आपके लिए ना, he will also respect you, he will also talk to you with respect, believe me. Yes. उसको लगेगा नहीं यार, this guy has something. और यही अगर आप अनटाइडी होके जाओगे, the person will not even would like to communicate with you. आपसे कोई भी वो बात भी नहीं करना चाहेगा. और ये फैक्ट है, आप अपने ऊपर सोच के रखो, अगर आपके सामने कोई बहुत वेल ड्रेस्ड है और एक कोई शाबी ड्रेस्ड अप है, आप किससे बात करना चाहोगे? Who would you like to talk? प्रेजेंटेबल कौन लगता है आपको? ऑब्वियस है वेल ड्रेस्ड पर्सन, राइट? तो ये कम्युनिकेशन नहीं, हम इसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट अगेन इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So this thing matters a lot. So whenever, wherever you are going, कहीं भी जाते हो घर से बाहर, इनफैक्ट घर में भी आपको नीट एंड टाइडी में कोई पैसे नहीं खर्च होते किसी के. साफ सुथरा रहने में पैसे खर्च नहीं होते हैं. It
always enhances. So try, अगर आप घर में भी quarantined हो अभी because of this coronavirus, try अपनी एक चीज आज से start करो कि I'll be in the morning, जो भी मेरे पास कपड़े हैं, shoes हैं, जो भी है with present thing, and I'll be very very nicely dressed up, neat and tidy. इसको habit बना लो अपनी. Once it comes into your habit, it becomes natural to you then. Right? So you Yes, all will be ma'am. doing this today from today onwards? Yes, ma'am. Very good. Okay, then it comes your facial expressions, gestures and postures. So you can see on this slides, expressions, facial expressions. Smile, gussa, worry, no expressions. So what type of person, when you talk to somebody, जब किसी से बात करते हो, आपको सामने वाले का फेस कैसा दिखना चाहिए? कैसे पसंद करोगे आप? A smiling face, I'm happy. happy, smiling, positive. Responding. Again, whenever you are talking to someone, maintain eye to eye contact. अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं किसी से बात करते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो सामने वालों को पता लग जाता है दैट योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. सो हमेशा किसी से बात करनी है, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखना है अपनी. पुट योर बॉडी स्ट्रेट, स्माइलिंग फेस एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट. दिस विल, बिलीव मी, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आपका थोड़ा नॉलेज भी कम है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को लेके, बट योर बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव, अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट है, बिलीव मी, दे विल गिव सेकंड प्रेफरेंस टू योर नॉलेज. वो आपके इस एक्सपीरियंस को देखते हैं. और इन टुडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में देखो, नॉलेज, गेनिंग नॉलेज बहुत मुश्किल नहीं होता है विद सो मच इंटरनेट अवेलेबल. बट आपकी अपनी पर्सनालिटी, what your personality you have, the way you present yourself in front of others is very very important. So start working on your personality from today onwards. I'll tell you few exercises जो मैंने पुराने बच्चों को बोली थी, mirror talking and all, that maybe I can send it to ma'am also later, that you guys can start working on. Sounds में क्या होगा? रीड करके ऑडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको सुना. नहीं, that is exercise. What do you mean by sounds? See, when you talk to somebody, आप वर्ड सेम यूज करते हो, बट आपकी टोन डिफरेंट होती है, आपकी वॉल्यूम डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इधर आना, हाउ ई कैसे साउंड कर रहा है? सूदिंग टू ईयर्स में अच्छा लग रहा है. इधर आना, वर्ड्स आर सेम. No. See how you have changed the volume and the tone. There is a different tone of voice. Please come here. It sounds so nice to you. और इसको सुन के जो लिसनर है वो आपकी बात भी सुनेगा. Please come here. See, my volume has gone up, my pitch has gone up. The words remains the same, right? So this is how we talk, how we use our volume, अपना voice tone, pitch, हम कैसे बात करते हैं. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, बट वर्ड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन वर्ड्स को आप कैसे बात करते हो, आपकी टोन क्या है, आपकी वॉल्यूम क्या है. और जो हम अबे इधर आ, टॉक लाइक दिस, राइट? आई हैव सीन लॉट ऑफ दिस, बट यू कांट प्रेजेंट योरसेल्फ विद दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. जब जाओगे आप, अभी फ्रेंड्स में बात करते हो, इट्स ठीक है, बट ये आपकी हैबिट बन जाती है. So, जब आप बाहर के वर्ल्ड में जाओगे, मे बी योर कॉलेजेस और फॉर अ जॉब और एनीथिंग एल्स, ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स, ये आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में हर्डल्स बनेंगे. सो यू नीड टू चेक योर वॉइस टोन, वॉल्यूम, स्पीच रेट. आज से जब से बात करोगे किसी से भी, अपनी वॉइस टोन को चेक करोगे, पिच को चेक करोगे, एंड स्पीच को रेट को चेक. स्पीच रेट मीन्स बहुत जल्दी नहीं बोलना, बहुत धीरे नहीं बोलना, राइट? Yes, ma'am. ओके. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? मैं फेस टू फेस. इंट्रापर्सनल मतलब
खुद से खुद से सेल्फ बात करना में, खुद से क्या बात हो गया तुम लोग? And communication by own self, with Yes. own self. We And were this- having an example of a cricketer is standing and thinking about what the next ball is coming. yes. वो ये सोच रहा है कि नहीं इस याद बॉल है, को तुम मैं पढ़ने वाले याद नहीं रखते हो? And one example also. yes Uh, he thought yes what will happen in on the road and accident. जैसे मैं कैन आई स्पीक इन हिंदी? yes I speak in Hindi, no worries. मैम जैसे ड्राइवर रोड में मोटरसाइकिल चला रहा है, हाँ उसको पता नहीं है कि वो अपने अंदर बात कर रहा है कि पता नहीं क्या रोड में हो जाए, कब एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेरे को ध्यान से रख के ध्यान से चलना चाहिए। तो ये भी इंटरपर्सनल हुआ ना एक तरह से। सी सेल्फ टॉक क्या होता है? जब अपने सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों बोलते हैं कि अपना टाइम बहुत, अपने आप को टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉक, यू नो, अपनी पूरे 24 घंटे में 24 आवर्स में 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स सिट अलोन, अपने आप से बात करो। मतलब बात करो इन सेंस कि इट्स इंटरनल, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग। अपने आप को रियलाइजेशन करो, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चंस करो अपने आप को कि आज जो मैंने किया वो सही था, या मुझे कल क्या करना है, मुझे वीकेंड पे क्या करना है। You can plan, you know, you can plan your life, you can plan your day, you can plan your week when you do self-talk. You understand? You have to sit with yourself. कई बार आप, this could be a silent talk, आप बैठ के कुछ सोचते हो। Again, it is an interpersonal communication. जब बैठे बैठे बहुत देर तक सोचते रहते हो, अगेन इट्स नथिंग बट ए कम्युनिकेशन है ये भी एक। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। आपकी अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज जो थॉट्स, जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं, आपके अंदर चल रही हैं, वो कोई दूसरा नहीं समझ सकेगा। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो आप सामने वाले को बता दोगे, बट आप क्या एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, दिस कुड बी ओनली यू हु कैन नो। So self-talk is very, very important. Take out 10-20 minutes of your whole day. Sit alone. Think. Introspect करो अपने आप को. This is called self-introspection also. Introspect yourself and see what you are doing and what you want to do. Are you on the right path? क्या आप सही जगह पे जा रहे हो? आप कहीं सही रास्ते पे चल रहे हो? आपको यही चाहिए, स्पेशली सीनियर स्टूडेंट्स नाउ। You have to see कि क्या मेरा ये प्रोफाइल सही है, मैंने आज ये किया, आज ही मैंने सही किया, आज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई की, am I right or am I wrong? इंट्रोस्पेक्ट करो for 20 minutes, sit down and just introspect yourself. अपने आप से बात करो। Believe me, ये टेक्निकल चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और अपने अंदर चेंज देखोगे आप अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। Believe me, 10 मिनट्स बैठो शांति से, अपने से बात करो, आपको खुद अपने रास्ते खुद नजर आएंगे सामने। See, people can support you from outside. Ma'am can guide you, I can guide you, your friends can help you. But जो करना है लाइफ में वो आपको खुद करना है। आपके पेरेंट्स कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, नॉलेज दे देंगे, it from inside what you want to do, and this can only be done with self-talk. And what is interpersonal communication? Interpersonal communication is when you communicate between two or more people. जब आप किसी और से बात करते हो। So intra becomes when you talk to yourself, and inter when it is for the outside world. आप जो भी अपने friends, parents, teachers से बात करते हो, it becomes an interpersonal communication. Now, 1-2 group communication could be teacher and a class of students. But agar 1-2 group communication, what do you think when your teacher is teaching you? Okay, be very frank here. जब मैम कोई भी मैम क्लास लेती हैं and you are listening, isn't it become little boring after some time? Yes or no? जब मैम आपको knowledge दे रही, yes or no?
Yes, Kalyani, you want to say something? Nobody's talking. Yes, Lakshman. No, ma'am. So one to group communication is when it is a one side communication. जब आप बात करते हो और अगला सुनता है. That is all. Yes, mass communication. I think Lakshman can talk on this. Lakshman, बोलो mass communication करना चाहते हो? What is mass Yes, communication? ma'am. What is mass communication? Mass communication is a process which ma'am, it's a link between government and public. No. They See, provide mass information communication public in to a layman government situation public. is when a message reaches to the mass of people. बहुत सारे लोगों को Yes, एक ma'am. message Communication means a man. रेडियो टेलीविजन फिल्म न्यूज होती है न्यूज इज अगेन अ मास कम्युनिकेशन न्यूज टेलीकास्ट होती है इट गोज टू लैक्स ऑफ पीपल राइट magazines books these are again mass communication newspapers Rohit would you like to add something on this Rohit Basu I want all students to speak up no. Okay okay what are barriers of communication this is very important कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं हमारी फिजिकल बैरियर्स Ma'am, may I? यस प्लीज Ma'am, it could be thought process or यस वेरी गुड nervousness, यस वेरी गुड um, state of confidence, whether you वेरी are गुड high confident or low confident, यस वेरी गुड or your fear your guilt sometimes you are guilty of something you have done something wrong yeah, and also the language barrier, as you have said it to us in the Yes. initial time, yes and skill also, speaking skill. yes see speaking skills is a skill which you can learn Yes, ma'am. लेकिन बाय ओवर जो आपकी बैरियर्स रुकावटें आ रही हैं जो आपको पता है कि आपको सी एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल किसी को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होगा किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो स्पीकिंग स्किल्स आप अपनी एनहांस कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बैरियर क्या है आपको क्या चीज रोक रही है फॉर सपोज इंग्लिश कम्युनिकेशन टॉक स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट अ बिग थिंग राइट नॉट अ बिग थिंग आप हिंदी बात करते हो ना कितनी फ्लुएंट बात करते हो लैंग्वेज है ऐसे ही इंग्लिश भी लैंग्वेज है बट कुछ रुकावटें हैं हमसे कि हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करते हैं उतनी फ्लुएंटली जितने हम हिंदी में बात करते हैं क्योंकि वो क्या बैरियर्स हैं हमको उसको ओवरकम करना है राइट सो फिजिकल बैरियर्स दीज आर टेक्निकल थिंग्स फिजिकल बैरियर है आप फिजिकली दूर हो किसी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो ठीक है वरी फियर गिल्ट परसेप्चुअल होता है परसेप्चुअल इज व्हाट यू आर थिंक एंड व्हाट अदर पीपल थिंक व्हेन योर थॉट्स डोंट मैच इमोशनल बैरियर्स होते हैं लड़ाई झगड़ा उससे लड़ाई हो गई अब उससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी उससे बात नहीं करूंगा होता है ना ये yes, आपस में लड़ाई हो गई मैम ने ये बोल दिया सर ने ये बोल दिया cultural barriers now cultural barriers is when there's difference of culture like एक कंट्री का कल्चर अलग होगा दूसरी कंट्री का इंडिया का कल्चर अलग है यू गो टू यूएस द कल्चर बिकम्स डिफरेंस तो हमारे अंदर एक बैरियर है कि हम उस कल्चर को ओवरकम कैसे हाउ टू स्पीक हाउ टू कम्युनिकेट इन दैट कल्चर अगेन लैंग्वेज बैरियर्स अगर आज आई स्पीक टू इन स्पेनिश आपको समझ में आएगा कुछ या आप मेरे से फ्रेंच में बात करोगे विल आई एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग नो जेंडर बैरियर्स भी आते हैं यार हम लड़की से बात करने में बड़ी शर्म आती है लड़के से बात करने में बहुत होता है कि नहीं होता है ये होता है तो दिस बिकम फीमेल एंड मेल जेंडर बैरियर्स भी होते हैं ये लड़के से बात नहीं करूंगी मैं लड़की से बात करूंगी मैं लड़की के साथ बैठूंगी साथ नहीं बैठूंगी होता है कि नहीं होता है ये होता है this again becomes a gender so you have to come off all these barriers
ठीक है, आपको ऐसा बैरियर से ऊपर आना है, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। इंटरपर्सनल में क्या होता है, तो दो लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, these all interpersonal, या जो भी आपकी interpersonal feelings होती हैं, it comes to interpersonal barriers actually. See in the picture what they are doing, they are shouting and he's closing his ears, he doesn't want to listen. क्या ये interpersonal? Now this is very important, how to overcome जितने भी आपके barriers हैं, चाहे वो culture है, चाहे आपका confidence है, चाहे आपका guilt है, how do you, आप उसको overcome कैसे करोगे? Take the receiver more seriously. Receiver means आप जिससे बात कर रहे हो, Yes. right? Suppose you are talking to me, right? So you have to take me seriously. I'm listening to you. Yes. ठीक है? आप कुछ भी नहीं बोल सकते. You have to be very careful कि जो सामने वाला है वो आपको क्या सुन रहा है और आपको उसको seriously लेना है. Clear message. The message has to be very, very clear. आपको किसी से भी घुमा फिरा के जब बात करोगे ना, make it like a jalebi and talk, कभी भी आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा. I'll show you a video, एक animated video after this. Focusing on the receiver, using multiple channels, ensuring feedback, and the most important is be aware of your own state. जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपनी स्टेट देखो कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, आपके इमोशंस, चेक ऑन योर माइंड, चेक ऑन योर इमोशंस और अपने एटीट्यूड, अपनी ईगो. These all you don't speak up, but they show in your attitude. जब आप बात करते हो ये सब चीजें सामने वाले को जो आपको सुन रहा है, who's a listener, is very clear. So ये आप नोट कर लो. Tools of acting. Just note down these 7 lines. Be brief, speak with manners, use I, be positive, show good body language, good listener, clarity, spice up your words means clear words, nice Chintu, words, where is your notebook? and pronunciation. Pronunciation is very, very important. Chintu, where is your notebook? Why you are sleeping? Why you are not writing right now? Please please write all the, मैं आपको सब कुछ नहीं लिखवा रही हूँ, but these points जब आप when you remember again and again when you talk, if you really want to improve your communication, if you really want that आप अच्छे से बात कर पाओ, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, see language comes later, but सबसे पहले you should learn how to present yourself in front of others. आपको कैसे बात करनी चाहिए, what language, like I've seen many of the kids using अबे यार मैं तो जा रहा हूँ, अरे तू आ जा. So language is fine. Hindi, you are talking Hindi, it's fine. But see the words you are using. What is the clarity what you are doing? जो person जो सुन रहा है उसको अच्छा sound नहीं कर रहा है ईयर में ना. और जहाँ आप abusive language, I mean गाली दे के बात करते हो, does it किसी को भी, does it feel good? Is it audible to your ear? No. आप जब किसी से गाली सुनते हो या some abusive language somebody uses for you, do you like it? No, ma'am. You don't. So then you don't have to speak also that way. आपको वो बोलना चाहिए जो आप सुन सकते हो. Just remember this. Speak what you are ready to hear. जो आप बोल रहे हो सामने वाला सुन रहा है. Similarly, जो सामने वाला बोल रहा है, क्या वही चीज आप सुनना चाहते हो जब वो बोलेगा? So speak what you want to hear. Just remember this always. ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्लाइड फिनिश. एक I'll just share a short video, 1 minute. Just hold on. I'll just share a video, small video for you.
I think I've closed that video. Give me 1 minute, I'll just do it. So आपको क्या समझ में आया पूरे सेशन में अभी तक? You want you to please speak up now. हाँ. So I just want to hear from you all, except Priyanka, Sanjay, Roshni. They are already speaking about it. Lakshma and Vasu, I don't want to hear from you. I just want to hear from others what you are able to understand. क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम क्या समझा रहे हैं? क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? बोलो. दीक्षा शिक्षा, फरीदा. फरीदा बोलो. मुझे जो समझ में आया, मैम ने जो बोला कि किसी से कैसे बात करना चाहिए, बॉडी मूवमेंट. किसी से कैसे बात करना चाहिए एक पॉइंट था. और क्या पॉइंट था? बात करते समय उसका मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए. बॉडी मूवमेंट नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बात की मैंने. बॉडी लैंग्वेज उसमें सब कुछ आ जाता है. राइट. और कौन बताएगा? लता? नहीं आरती, तुम नहीं. लता, जुएल, फयाज, प्रीति, इंद्रजीत, राजू, बताओ आप लोग. मैम यू आर म्यूट राइट नाउ. Okay. Yeah. Do you understand? What did you learn from this? And what is your takeaway from this session? So Farida is sharing that she has learned that हमें दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए. Very good. And? Non-verbal communication, Raju. Yes, non-verbal communication is very important. The way you sit, the way you look, the way your eyes work. See, it's a very I don't want to take you technical, लेकिन शायद मैंने senior students के साथ बहुत technical लिया है. आई की जब आपकी left जाती है, आपकी आई right जाती है. This is all technical. If you want, I can share slide with ma'am and ma'am can give it to you. कि हर चीज में जब आप किसी से बात करते हो, अगर आपकी आंख ऊपर जा रही है, आपकी आंख नीचे आ रही है, मतलब होता है. So this is a science. जो सामने वाला, the person can make it out what you are thinking, what are your thoughts. So I want somebody from new students to speak up. See, what did you learn and how will you overcome this, your speaking skills? How will you enhance your speaking skills? कोई नए बैच में से कोई? अच्छा मैम, can I speak here? Can I speak? Yeah. So last 3-4 months से हम लोग online सारी classes कर रहे हैं. Have you ever seen me sitting in the shorts or in nightie or nightgown or not combing my hair or something like that? क्या कभी आपने ऐसी स्थिति में मुझे देखा कि मैं अपने शॉर्ट्स में आ गई हूँ, नाइट ड्रेस में आके बैठ गई हूँ क्लास लेने के लिए? घर ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? No, ma'am. So ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. If you are attending any kind of class, you should check what you are wearing. ठीक है? If you keep yourself neat and tidy and up to date, you will feel good. एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है आपको किसी और. इनफैक्ट आई वांट टू शेयर हियर कि मेरे को परफ्यूम्स के बहुत ज्यादा शौक है. इनफैक्ट बिफोर द क्लास एवरी डे व्हेन आई गेट अप आई गेट रेडी, सो मैं परफ्यूम जरूर यूज करती हूँ. सो एक दिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं, स्मेल थोड़ी ना आती है ऑनलाइन क्लास में, तो परफ्यूम क्यों लगा रही है? मैंने कहा इट्स नॉट फॉर द क्लास, इट्स नॉट फॉर द अदर्स, इट्स फॉर माय सेटिस्फेक्शन. मैं जो कर. So that is, अगर आप अच्छे से जाओ, अगर आप तैयार होते हो बहुत मन से और आपको सामने वाला आके आपकी मम्मी या आपका भाई बोल देता क्या पहना है तूने, तो आपको क्या लगता है उस समय? कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कहीं ना कहीं, और आपको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो एक बूस्टअप हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग, आप जब घर में भी हो
और इनफैक्ट आप अगर क्लास कर रहे हो तो बी इन दैट वे कि आप ढंग से बैठे हो, ढंग से कपड़े पहनकर बैठे हो, पैर आपने कैसे रखा हुआ है, आप कैसे बैठे हुए हो, कहाँ लेटे हुए हो, कहाँ क्या कर रहे हो, तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि आप लोग कितना ज्यादा सीरियस हो अबाउट योर क्लास. See, I'll just give an example. When you first go, अगर आप suppose admission के लिए जाते हो, या yes रोहित रोशनी, बहुत funny है, वहाँ पे कुछ funny हो रहा है. रोहित रोशनी, I don't know. This is another thing what you do. इससे हमें पता चल जाता है how serious are you. Rohit, you are not at all serious in the class. I can see that. Roshni is serious right now. See, when you go out, suppose आप चाहे अपने स्कूल के एडमिशन के लिए जा रहे हो, what is the first thing your principal or your teacher will see? Tell me. पहली चीज क्या होगी जो वो टीचर या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या एडमिशन के लिए जा रहे हो, किसी चीज के लिए भी जा रहे हो, तो पहली चीज बॉडी लैंग्वेज. और हमने बॉडी लैंग्वेज कम्स लेटर. फर्स्ट थिंग जो आप खुद भी देखो, जब आप किसी इंसान को पहले देखते हो, क्या चीज स्ट्राइक करती है उसका अपीयरेंस. कपड़े. इंप्रेशन बना लेते हो by looking at the person. उसने कुछ बोला नहीं है आपको, कुछ एक वर्ड बात नहीं करी है, बट आपने उसको सिर्फ देख के एक इम्प्रेशन बना लिया अपना. एंड फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So the first impression is only how you carry yourself. आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, is very very important. आप किसी को भी देखते हो, जब आप किसी भी अननोन को देखते हो, आप उसको क्या देखते हो उससे सबसे पहले, क्यों वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, बोलना शुरू ड्रेसिंग एंड वो प्रेजेंट कैसे, इज ही नीट. सिर्फ ड्रेसिंग कपड़े नहीं है, शूज के लेस खुले हुए हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं. इज इट अ गुड सेंस? नो. बॉडी लैंग्वेज. Yes, he has to be very neatly dressed up, positive body language, smiling face. ये सब चीजें contribute करती हैं आपके impression में. और मैं बोलते हैं ना, first impression is the last impression. The first impression comes from here only. Do you understand the importance now? Yes. अच्छे से ड्रेसअप हो, अच्छे से नीटली अपना हेयर टाई करो. इट डजंट कॉस्ट मच. ये आपको खुद अच्छा लगेगा, करके देखो. एंड वन मोर एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू गिव टू द ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर न्यू स्टूडेंट्स भी करना चाहें तो. लक्ष्मण, कैन यू एक्सप्लेन, और आशीष और रोहित, और मिरर टॉकिंग प्लीज. एनी ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स कैन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मिरर टॉकिंग. Lakshman, you can speak. Lakshman, are you able to hear me? No, he is not. Vasu, are you able to hear? Lakshman? Left. Lakshman, can you hear? Vasu Yeah. has unmuted. Vasu ma'am, mirror talking के बारे में. There is some challenge with them today. Okay, see, mirror talking is, maybe you can take up a book also, और एक आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो. See, this is for your good. अगर आप लोग करोगे, this will increase your confidence. आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होंगी, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता. और अभी तो आप लोग सब लोग आइसोलेट हो, आप मिल भी नहीं रहे आपस में, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है. तो इससे सबसे अच्छा इस टाइम पे कि शीशे के सामने खड़े हो, मे बी एक बुक ले लो, या कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, वट एवर, जस्ट स्पीक टू योर सेल्फ फॉर 5 minutes. अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, अपनी आई मूवमेंट्स देखो, चेक ऑन योर सेल्फ. अभी आपको कोई चेक नहीं कर सकता. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर 5 minutes. शीशे के सामने 5 मिनट खड़े हो. बाल बनाते हो ना 10 मिनट शीशे के सामने, जस्ट 5 minutes के लिए.
Just 5 minutes. Hello Bharat, how are you? Fine, ma'am. And you? Why aren't you speaking up? You are here. Yes, ma'am. चलो भरत बता दो फटाफट मिरर टॉक कैसे करेंगे. मिरर टॉक हम रोज मतलब रोज 5 मिनट या 10 मिनट कर सकते हैं और साथ में हम बुक भी ले सकते हैं, तो बुक से थोड़ा इंग्लिश का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो because जाता है. यस वेरी गुड. इससे क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग एंड इंग्लिश, रीडिंग से साथ आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बेटर होगा, आपके प्रोनाउंसिएशन बेटर होंगे. एंड व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन जज योरसेल्फ कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, कैसे आप बोल रहे हो, सामने वाले को कैसे दिखोगे. आप खुद अपने आप को देखोगे तो पता लग जाएगा कि सामने वाले को कैसे दिखोगे. सो दीज आर सम थिंग्स विच आपको काम करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशंस पे. थ्योरी क्लास कर ली, मैंने समझा दिया, मैम ने समझा दिया, उससे कुछ नहीं होगा. हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट दीज थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. और इट इज ओनली प्रैक्टिस which can make you. You have time, you are class, अभी आप 12th में नहीं आए हो, you have 1-2 year with you. आप कम्युनिकेट करो अपनी स्किल्स को, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम. यू आर होम, आपको कुछ नहीं करना, आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, आप घर पे ही हो, बाहर भी नहीं जाना कोई घूमने के लिए. बेस्ट चीज है अपने आप पे काम करो, रंजीत, अपनी इस स्किल्स पे काम करो. बिलीव मी, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है. आपके पास सारा नॉलेज होगा, पूरा जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, लेकिन अगर आप नॉलेज को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो प्रॉपरली, दैट नॉलेज इज अ वेस्ट. इट इज रियली अ वेस्ट. अगर आप प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स, अपना नॉलेज किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो उस नॉलेज को अपने पास रख के आप क्या करोगे, मुझे बताओ. See, a teacher, when she's teaching you, a ma'am is teaching you, she's sharing your knowledge, right? Her knowledge with you. कितनी clarity के साथ एक communication होता है, so you can understand, right? Her communication is so clear. तभी तो आप समझ पाते हो. क्यों बोलते हो कोई मैम अच्छा पढ़ाती है, कोई मैम खराब पढ़ाती है, इनका समझ में नहीं आता, इनका समझ में आता. होता है ऐसा, होता है ना. नॉलेज सबके पास है, सब मैम्स के पास है, सबने अपनी डिग्रीज ली हुई हैं, बट कुछ लोग बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं और कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. रंजीत एंड सोनाक्षी, सो आई वांट यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ. राइट, कोशिश करो, अगर लिख सकते हो तो डायरी एंट्री लिखना चालू करो. राइट व्हाट यू फील, योर फीलिंग्स एवरी डे. जस्ट राइट. गलत इंग्लिश लिख लो, लिखो, रोज 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 लिखोगे, डेफिनेटली परफेक्ट हो जाओगे एक दिन. See, nobody is born with the skills. हम सब ने भी सीखा है, right? Nobody is born. कोई ज्यादा इंटेलिजेंट, कोई कम इंटेलिजेंट नहीं होता है. It is how effort, what effort you make. कितनी मेहनत कर सकते हो अपने ऊपर. That will make you a person. So just do one thing. Just do mirror talk for 5 minutes. Take up an English book, any book, story book or something. और एक आप डायरी एंट्री लिखो. डायरी एंट्री में यू कैन जस्ट राइट डियर डायरी, जैसे फ्रेंड को एक लेटर लिखते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू फील, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप लिखोगे भी ना तो आपकी अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस होंगी. समटाइम्स व्हाट वी डू इज हम अपनी फीलिंग्स को ना होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, फिर वो क्या होता है एक दिन बूम गुस्से में निकलती है, बूम होता है, वो होता है ये सबके साथ. So if you start writing and sharing, your behavior will also, you will become more a calm person. Your behavior will go good. अगर आपका behavior अच्छा हो रहा है, आपकी body language automatically positive हो जाएगी. डायरी एंट्री बहुत अच्छी चीज है, इसको लिखना स्टार्ट करो. कुछ भी लिखो जो मन करता है आपके, अपने पास रखो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. शेयर करो, मिरर टॉक करो, शीशे के सामने से 5 मिनट खड़े होकर बात करो, देखो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. लेट मी नो आफ्टर 2 weeks टाइम. जस्ट 2 weeks, डू इट एवरी डे. 15-20 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है 24 hours में, नॉट अ बिग थिंग.
And if you don't have mirror, then you have mobile phone, उसका front camera open करो. कैमरा ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करके दोबारा अपने आप को देखो. अभी बहाना आएगा कि शीशा नहीं है, कैसे करें घर में? You have everyone is having mobile, so you can open your mobile and front camera on करो और उससे बात करो अपने आप. और रिकॉर्डिंग करो. पता है, अगर फोन है तो रिकॉर्डिंग करो, एंड आफ्टर यू फिनिश सी योर रिकॉर्डिंग. आपको खुद पता लग जाएगा, खुद सेल्फ एक्सेस करोगे, अपने आप को असेस करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे फेस कहाँ जा रहा है, हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं, अगले वाला क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में. बिलीव मी. मैं आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया. वीडियोस बना लो अपने, शेयर मत करो किसी के साथ, अपना खुद देखो. Just for you, your own learning. This is how you can enhance your communication. बुक्स पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, बट जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे प्रॉपरली, none of the knowledge is good. You have to be a good speaker, you have to be a good listener, you have to show a positive body language. 3 चीजें याद रखो हमेशा. कोई अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है, उसको भी सुनो. जब good, if you're a good listener, then only you can be a good speaker. Right? Anything else anyone wants to ask? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी ने कहीं पर कुछ चीज कहीं पर किसी से बात कर रहा था, किसी फ्रेंड ने कुछ बात बोली हो, या तू कैसे बात करता है, क्या करता है, या आपको कोई सुनता नहीं हो, तो कुछ भी anything, any kind of question you can ask. मैम. हाँ जी मैम, जब भी मैं कुछ चीज अपनी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ तो उन्हें समझ नहीं आती, बट मैं सेकंड टाइम जब बता रहा हूँ तब उन्हें समझ में आती है. मेरे को समझ नहीं आती, वो मतलब समझाऊं कैसे उन्हें फर्स्ट टाइम में. सेकंड टाइम में समझ में आता है ना उनको. हाँ, फर्स्ट टाइम में नहीं आता. तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो. या तो आपकी क्लैरिटी नहीं है, वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है, व्हाट यू वांट टू स्पीक टू देम. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि पहली बार क्या बोला था और दूसरी बार में ऐसा क्या मैंने बोल दिया तुमको समझ में आ गया. रंजीत, मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से. लास्ट वार्निंग है. आप देखो, आप कभी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैंने फर्स्ट उसमें क्या उनको बताया था, या मैंने क्या बात की थी, और मैंने सेकंड पार्ट में क्या बात की जो उनको समझ में आ गई. बिकॉज सी द पर्सन इज द सेम. ठीक है, आप उसको पहली बार में भी अगर बताओगे उसको समझ में आना चाहिए. इसका मतलब कहीं से आपके कम्युनिकेशन में कुछ कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए. आप एक बार चेकआउट करो कभी किसी से बात करने में कि आपने ऐसा क्या फर्स्ट इंस्टेंस में बोला कि आप बहुत फास्ट थे. हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो आप किसी से, मे बी यू आर मोर नर्वस, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्सन. जब सेकंड बार उससे मिल रहे हो तो आप कंफर्टेबल हो, आप कम नर्वस हो, तो आप उसको क्लैरिटी से बात कर रहे हो उसके साथ. आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों ऐसा हो रहा है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में. यस मैम. एक बार देखो, हो सकता है फर्स्ट टाइम में नर्वसनेस हो, नहीं कॉन्फिडेंस हो, सेकंड टाइम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आपके साथ, तो आप उनको समझा पाते हो. तो मैम मैंने हाँ जी, हेलो मैम, मैंने हाँ जी, हाँ एक्सपीरियंस किया, जब फर्स्ट टाइम बोलता हूँ तो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, तो मेरे साथ वर्ड पहुंच नहीं पाते, अंदर ही रह जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है. दिस विल गो. अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना, टॉकिंग, स्पीकिंग, अपने आप से बात करना, मिरर टॉक करना, लिखना, ये सब ओवरकम हो जाएंगे एक टाइम के बाद. यस मैम. See, there are so many people, you know, in my family who have throughout the life, उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, throughout the life, including the college. But आज वो एक मल्टीनेशनल के साथ काम करते हैं. I have so many examples in front of me. तो लैंग्वेज, ये स्किल्स तो बाद में आई ना. कैसे कर रहे हो थ्रू आउट हिंदी? आप तो बहुत छोटे हो. दे हैड कंप्लीटेड देयर कॉलेज इन हिंदी, डन ऑल द एजुकेशन इन हिंदी करी है, लेकिन आप देखो आज MNCs और UK और US लोगों के साथ बात करते हैं. सो लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. लैंग्वेज आप सीख जाओगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस. यू शुड हैव दैट एपेटाइट टू लर्न. अपने अंदर वो होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है. नथिंग कैन बी अनअचीवेबल. यस मैम. ओके. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि फर्स्ट टाइम पे वर्ड्स नहीं होते हैं. ये सब प्रैक्टिस से आएगा. The more you talk, the more you can communicate properly, this will go with the time.
Anything else anyone wants to ask? Very good, संजय. कोई और पूछना चाहता है, कुछ और शेयर करना चाहता है? जब तक पूछोगे नहीं तब तक निकलेंगी नहीं चीजें, और जब तक निकलेंगी नहीं चीजें ये मत सोचना कि ऐसा फालतू क्वेश्चन क्यों करूं. हो सकता है वो तुम्हारा एक फालतू कोई क्वेश्चन भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा हो किसी के लिए. कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं फालतू नहीं होगा. होता. Nobody will make fun of you. कोई भी हंसेगा नहीं आपके ऊपर. This is where your confidence comes in. Rohit, are you trying to say something? What are you doing? मैम मैं हाँ गुलशन. मैम मैं ना बहुत नर्वस हो जाती हूँ बोलने में कहीं भी. किसी के सामने मैं ना पब्लिक स्पीक कर पाती हूँ और वैसे भी मैं किसी के सामने ज्यादा बोल पाती हूँ. See, और public speaking. Sorry, हाँ, please carry on, गुलशन. हाँ जी. मैं अभी भी नर्वस ही हो रही थी इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी. देखो, आपने स्टेप लिया ना, आप आए पूछने. यही स्टेप्स आपको छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो ये फियर जाएगा आपका. अगर फियर लेके बैठ जाओगे, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज अ बिग फियर. 95% ऑफ द पीपल गो थ्रू इट. ठीक है, आज मैम को भी, अगर मेरे को भी आज एक 500 या 600 लोगों को एड्रेस करना होगा तो कहीं ना कहीं एक फियर रहता है ना मैम? बिल्कुल रहता है ना, बिल्कुल रहता है. बट ये छोटे छोटे स्टेप्स हो गए. जैसे आज आपने कोशिश करके पूछा क्वेश्चन, दिस विल ओनली enhance your confidence slowly. धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लो. ठीक है, बात करने की कोशिश करो. देखो, nobody will kill you. ठीक है, आज आपने क्वेश्चन पूछा, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा. नेक्स्ट टाइम में भी किसी क्लास में आप तुरंत बिना सोचे क्वेश्चन पूछोगे. राइट गुलशन? तो दिस इज हाउ यू सी. आप वो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर बात गलत भी है या ठीक है, इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, या किसी को लगता है कि ये बात बहुत ही स्टूपिड थी, बट वो बात आपके लिए स्टूपिड नहीं है. क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यू वांटेड एन आंसर फॉर दिस. दूसरों को नहीं चाहिए था आंसर, राइट? So never think any question or anything is stupid. ठीक है गुलशन? ओके मैम. Did you get it? Never think about other people. आपने आज चीज बोली है, 10, maybe 20 of them wanted to ask the same question, but उन्होंने पूछा नहीं मेरे से. So at least you at least took that initiative and spoke to us. And this, ऐसे ही आप बात करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. धीरे धीरे सब हो जाएगा. एक बार मेरा टॉक करना चालू कर दो, 15 दिन में देख के बताना मुझे. ये क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन. एंड इंट्रापर्सनल टॉक. हाँ, इंट्रापर्सनल टॉक करो. सिट फॉर 10 minutes. जस्ट डू 3 exercises. राइट अ डायरी एंट्री एवरी डे. 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको. ट्राई टू राइट इन इंग्लिश. नहीं होता तो हिंदी में लिखो, कोई बात नहीं है. ठीक है, बट अपनी फीलिंग्स को लिखना सीखो. अगर इंग्लिश में लिखोगे, बिकॉज हिंदी में आप लोग सब वेल वर्स्ड हो. ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, तो थोड़ा सा आपका इंग्लिश वर्जन भी आपका कम्युनिकेशन का बेटर होगा. मिरर टॉक करो और इंट्रोस्पेक्ट करो. सेल्फ टॉक करो 10 मिनट. सी दैट 10 minute सेल्फ टॉक कुड बी अ डायरी एंट्री ऑल्सो. वो आपका सेल्फ टॉक ही एक तरह का, जब डायरी एंट्री अपनी फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. एंड मिरर टॉकिंग इज वेरी गुड. और अगर आपके पास कोई बुक है, कोई छोटी स्टोरी बुक है, जो भी आपकी इंटरेस्ट की बुक है, इफ यू कैन रीड, यू हैव टाइम, स्टार्ट रीडिंग इट. बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, छोटी स्टोरी बुक्स आती हैं, इंटरेस्टिंग. मैं ये नहीं बोल रही कोई मोटा सा नॉवल लेके बैठ जाओ. स्टार्ट वहां से स्टार्ट करो. आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंग्लिश स्टोरी बुक, जहां से आपको लगता है कि ये बुक मैं पढ़ के समझ पाऊंगी. ठीक है, वो बुक्स पढ़ो. स्टार्ट रीडिंग. छोटी स्टोरी बुक्स पढ़ से स्टार्ट करो. कोई नॉवल या कोई, अब आपको एनसाइक्लोपीडियाज नहीं बोल रही पढ़ने के लिए, या कोई बिब्लियोग्राफी. छोटी छोटी बुक्स होंगी, सबके पास होंगी स्टोरी बुक्स, आई एम श्योर. ठीक है, एक कोई बुक उठा लो, पढ़ लो. सॉरी, anyone wants to ask something? No ma'am, she was talking to someone else. Anything else? मैं एक वीडियो ट्राई करी थी मैम, 1 मिनट मुझे दे दो अगर मिल जाता है मुझे तो. Sure, ma'am.
हम जो बोलते हैं ना रोज, जब बोलते थे स्कूल में, अभी तो आप एक वीक में एक बार बोल रहे हो या 2 दिन बोल रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, दैट इज ऑल्सो इंट्रापर्सनल talk. You're talking to yourself that you are confident. I am at my best, that you are best whatever you are doing. You are able to give your best. So I am the best की जगह I am at my best बोलते हैं, इसलिए I am the best में वो आ जाता है कि अरे मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मुझसे तो अच्छा कोई नहीं हो सकता. That's why we call it I am at my best. I love myself. Why we say that? Because हम जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरे को, जब अपने आप खुश नहीं होंगे तो हम किसी को खुश नहीं रख सकते. So these 3 phrases are not for the class. These 3 phrases are for every day. When you get up, talk to yourself about it. Go to the bathroom or go open your video or anything. मतलब फोन पर शीशे में अपने आप को देखकर बात करो, अपने आप से कहो कि you are this. वो तुम लोग काली कब कर रहे हो? जब मैं बोल देती हूँ हाँ चलो बोलो, जब तुम्हारी क्लास होती है. अदरवाइज यू आर नॉट स्पीकिंग टू योरसेल्फ. बिलीव मी, अगर आप एक बार मिरर टॉक करके देखो, जस्ट फॉर अ वीक करके देखो एंड सी कितना डिफरेंस होता है. और अगर वीडियो पे कर सकते हो रिकॉर्डिंग अपनी, इफ यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन वीडियोस एंड सी इट, बिलीव मी 10 days वीक यू कैन सी अ चेंज इन योरसेल्फ. वीडियोस रिकॉर्ड करके रखो day 1 and day 10 एंड देन कंपेयर करो उन दोनों को वीडियोस को, आपको खुद चेंज लगेगा. एक स्मॉल वीडियो आई शो यू, वेरी एनिमेटेड फनी वीडियो. See this video. Ma'am, voice is not coming. No, it's still not coming. While we screen share, there is on the left side down ना, वहाँ पर एक वो होगा चेक बॉक्स होगा, उसको आपको क्लिक करना होगा. Again you need to stop it and again you have to run it. आप इसको एक बार आप इसको अभी ऑफ करो और जब आप स्क्रीन शेयर दबाओगे ना तब होगा वो. आप इसको ऑफ करो एक बार. ओके. अभी आप स्क्रीन शेयर प्रेस करोगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा शेयर कंप्यूटर साउंड, उस पर चेक बॉक्स कर देना, देन स्टार्ट योर वीडियो. Good one. See, did you see it was small clip of a communication? Did you understand? क्या समझ में आया? समझ में आ गया? क्या आया समझ में? कौन बताएगा क्या समझ में आया? कौन बताएगा जल्दी? जो भी आया, जरूरी नहीं है कि ये सोचो कि अरे ये नहीं होगा कुछ और होगा तो मुझे क्या समझेंगे. Priyanka, you want to speak? हाँ. मैम मुझे इसमें ये लगा कि जो दिया था ना वो एक सबको खा रहा था, तो वो कुछ आ रहा था, तो क्या मतलब क्या कम्युनिकेट हो रही है हम लोग में. सजाद बोल. मैम हाँ बोलो संजय.
मैम मुझे ये लगा कि हमें सही टाइम पे सही मतलब कन्वर्सेशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। या यस, वेरी गुड। बिकॉज जो थर्ड रैबिट था उसने क्लैरिटी दी। उन लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा, एम आई पार्ट ऑफ इट इन योर लिस्ट, क्या मैं आपकी लिस्ट में हूँ? उसने बोला यस। दे डिड नॉट आस्क कि कैन यू स्पेयर मी, क्या मुझे छोड़ सकते हो आप? उस रैबिट ने पूछा, उसने कहा यस। सो दिस वाज अ क्लियर कम्युनिकेशन। उसका क्लियर कम्युनिकेशन था, सो ही गॉट सेव्ड। एंड यू कैन सी कि जब वो रैबिट अंदर जा रहा था, he was confident. Did you see? He was running and going. But the other two animals, they were scared, nervous. So confidence is something which you present in front of other people, you get what you want. You understand this? It was a very nice video. छोटा सा video था, एक animated. Anything else, or we shall? And theater is one of the place where you open up. Yes. You get your confidence. So theater is, if we are taking the giving you the theater classes, it's not for Yes. your that we want you to become actors. In fact, theater से most of the theater से होता है कि आप में वो confidence build up हो. Yes. You feel confident in Yes. speaking in front of others. क्योंकि अगर सर आपको कोई भी situation देते हैं where you have to speak up और आपको कुछ भी सर बोलते हैं कि इस जानवर की तरह बोलो या इस एनिमल की तरह चलो या कुछ करो, so that you are getting your confidence back. You are trying to show off your things in front of others. So जो भी पिछले कुछ थिएटर कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने अंदर चाहे 5%, 10%, 15% कुछ ना कुछ चेंजेस इसलिए देखे होंगे क्योंकि उससे क्या हुआ होगा, आपको झिझक मिट गई होगी कि आपको स्टेज पर या लोगों के सामने कैसे बात करनी है. Yes, theater is a very good platform, very good platform. So you all will do what I've told you. I can just request you, see, you all grown up kids now. You know what you want. आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है. आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, नहीं करना है, ये आप पे है. आप लोग अब बड़े हो गए हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. See, मैम कैन गाइड यू, आई कैन गाइड यू, बट करना आपको ही है. आपको टूल्स बता सकते हैं कि आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, गाइड कर सकते हैं, बट हम आपके अंदर जाके आपको सिखा नहीं सकते कि नहीं करना है. वो मोटिवेशन अंदर से खुद आना चाहिए आपको. अगर लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ती है, कोई भी होता है इस वर्ल्ड में. So you need to work hard. And I had seen a lot of changes in the previous batch. Lakshman, Rohit, Ashish, I had seen a lot of change in them. Bharat was there, Feroz was there. उनका वो डर चला गया था when they used to talk. जब मेरी फर्स्ट क्लास में आते थे, कोई नहीं उठ के बात करता था, बट धीरे धीरे they came up and they used to speak. Am I right? Ma'am is asking from 12th, those who have passed. भरत, मुझे भरत की फोटो दिख रही है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है. Yes, भरत, speak up. मतलब मेरा फर्स्ट का था तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब मैंने सेकंड क्लास आपका ज्वाइन किया था तो फर्स्ट मैंने बोला था कि हाँ मैं सुनाऊंगा. Yes, I could see lot of change in भरत. तो बहुत गैप हो गया. रोहित was there. Yes, Vasu was very confident. Lakshman was very confident. Ashish कहाँ चला गया? Where is Ashish? Feroz. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ashish, I can't hear. I have not heard a single word from you. The whole. Feroz is there, Sanjay? Feroz. No ma. But he texted me. मुझे मैसेज किया था, मैम I want to join your class. हाँ, there must be some issue because उसने सुबह भी किया था. ओके माँ, पता नहीं कहाँ है. आशीष, शेयर करो अपना एक्सपीरियंस. जब मैंने पहली क्लास ज्वाइन किया था तो मैम ने कहा था कि खड़े हो जाओ, तो मैं बहुत नर्वस हो रहा था, बहुत डर रहा था. तो पहली बार मैं खड़ा हुआ स्पीच देने के लिए, तो हाथ भी हिल रहे थे, पाँव भी हिल रहे थे, लेकिन बोला था, थोड़ा थोड़ा बोला था. और उसके बाद धीरे धीरे अपना
जो नर्वसनेस थी वो दूर हो गई, फियर था वो भी दूर हो गया, और अच्छे से फिर हम बोलने लगे और स्पीच पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया नेक्स्ट टाइम. सो Yes, Vasu, can you share your experience? हेलो, मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ आ रही है. आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है, बोलो. ओके. सो जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, हमने एनजीओ में ही ज्वाइन किया था, तो ऐसा होता था कि अभी मैं मतलब बोला था आपने कि खड़े होके आपको इंग्लिश में बोलना है, कुछ भी बोलो अपने बारे में या कुछ भी बोलना है आपको. तो ऐसा होता था कि मैं खड़ा होऊंगा या पहले कौन होएगा, ऐसे देखते रहते थे हम लोग. पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं हो जाऊंगा, मैं तीसरा हो जाऊंगा, उसके बाद ये हो जाए, मेरे को बोलना ना पड़े. तो थोड़ा ऐसा लगता था कि अगर मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं गलत बोलूंगा तो क्या होगा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा. उसके बाद धीरे धीरे आप मतलब कराते गए, आप हमने बोलना चालू किया, खड़े हुए बोले. अब फिर उसके बाद नंबर लगने चालू हो गए कि इसके बाद यही बोलेगा, फिर हम लोग खड़े होके अपने आप बोलते गए. हमने रिकॉर्ड कर करके वॉइस भेजा, हमने खुद ने सुना, हम कैमरा ऑन करके अपना खुद का वीडियो देखते थे आमने सामने. ऐसे बोलता था ना मैं, तो ऐसा मैं थोड़ा चेस्ट आउट, शोल्डर वोल्डर सब रिलैक्स करके ऐसे बोलता था अपने आप को देख के वीडियो में. तो मेरे को लगने लगा यार अब तो ये रेगुलर हो गया है. अब रेगुलर के काम में क्या डरना. जैसे एक दिन साइकिल चलाना मैं सीख रहा हूँ, तो एक दिन गिरूंगा, डर लगेगा यार गिरना जाऊंगा. अब मैं जब चलाना ही सीख गया उस चीज को, तो बेफिक्र हो गया, ऐसा टाइप हो गया मेरे लिए. फिर थोड़ा सा मतलब फिर चला गया था, कई हद तक चला गया था. फिर तो ऐसे ही अपने आप खड़े होके हम लोग खुद आते थे, मैम मैं फर्स्ट, मैम कैन आई स्पीक, ऐसे करके फ्रंट में आके अपना स्पीच चालू करते थे हम लोग. Yes, I remember. See, he's very nice, boss. Very good. See the confidence. He's become so confident. So slowly and slowly only you will win the race. एक दिन में नहीं आएगा. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, रोज की रोज अपने लिए प्रैक्टिस करो. अपने भाई बहन को बिठा दो, छोटों को सामने, जो आपको जज नहीं करेंगे. उनके सामने बैठ के बात करो. उनको बोलो बैठो, हम बोल रहे सुनो. ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. वो छोटे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे. राइट, ऐसे करना है. धीरे धीरे स्टार्ट करो प्लीज. ठीक है. दोज हु आर रियली सीरियस अबाउट, जो आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो प्लीज करो इसको. और जो उनको नहीं कुछ करना है, फिर उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता. यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. आपको सपोर्ट मिलता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए. सपोर्ट आपको चारों तरफ से मिलेगा, बट व्हाट somebody has to do, जो कुछ करना है वो आपको. सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा लाइफ का ये. राइट. So ma'am, can we end the class? Yes, we can, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. It was nice, and I hope you will all do what I have told you for your betterment, for to lift yourself up in life. Right? Chalo, see you. Bye. Good Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Those who have joined and was there till the end. उन्होंने समझा, और आई होप कि तुम लोग आज से ही चीजें शुरू करोगे. जब तक मैम नेक्स्ट क्लास में होंगे, तब तक तुम लोग अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे. ओके, सो बाय बाय. बाय मैम.